महाभारत में कहानी कि एक नेवला था और वो बस पुण्य काम को देख रहा था। उस पुण्य को देखकर उसका आधा शरीर सोने का बन गया। जब कभी भी कोई ऐसी घटना का विवरण गुरु तत्व प्रदान करता है तो बहुत शक्ति प्रवाहित होती। उस शक्ति, उस कृपा का एक अंश तुम्हें भी मिलता है। साथ ही साथ क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। आज महादेव इस साधक की चिट्ठी मेरे सामने रखते हैं और ये साधक कहता है, नमः शिवाय भैया, आपकी कृपा और आशीर्वाद से I have been able to continue my Anushthan every day. All the way from LRT1 until today, I am sharing this with you because it is the biggest achievement of my life that whenever my Guru calls, I am available. You have transformed me in such a way that I never feel anything is missing. Before Shivyog, I was nothing. Shivyog से पहले मैं कुछ भी नहीं था, and now, only because of you and your grace, I have a good salary, a happy family, and good health. In my immediate family, we have reached a state where illness and sickness no longer occupy our mind. It feels as if we naturally ignore them because we are protected by your grace. मेरे साथ और मेरे परिवार में अब हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां पे दुख और बीमारी अब कभी भी हमें हाथ नहीं लगा सकती, मानो शिव स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं. All these things are Maya, and I am happy that we simply enjoy and observe them. They are not very important to us because they provide happiness only for a short period. The second biggest achievement of my life is that the Mahasiddha has arranged my life in such a way that my sadhana is always aligned with my lifestyle. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या प्राप्त हुआ. मैंने महासिद्ध से प्रार्थना की कि मेरे काम को कुछ इस प्रकार से रखना that the timing and work when I do, I can do as much sadhana as possible. My work and responsibilities are important and I do not want to neglect them, but I cannot ignore the agenda of my soul either. I do not know how it will happen, but please make it possible. The very next day, Mahasiddha performed a miracle. I was moved to a different project and my client is based in the United States. My office timing became 12 to 9. Now I have plenty of time before noon, and since I work from home, I do not even need to travel. This is my current schedule. Although I was already doing many of these practices, my new office has made everything so much smoother. I was already doing my daily YOI, my Shri Vidya Sadhana, but I wanted to give more. मैं और करना चाहता था. मेरे गुरु ईशान शिवानंद ने मुझे कहा, identify your limits and break them. I have always followed this principle. I constantly observe how much time I am giving and then challenge myself to do better the next day. I know I cannot give anything to you because I have nothing of my own to offer. I am merely the dust of your feet. What can I possibly give when my very existence is because of you? I possess nothing that is truly mine. I am always a beggar at your door. While following my new schedule over the last month, I examined my daily routine and identified the extra time that was being wasted on mobile phones and other unnecessary activities. मैं सुबह 4 बजे रोज उठता हूँ. पहले मैं 4:30 बजे तक सोता था. So I decided to use the time for sadhana. अब 4 से 4:30 तक मैं बहुत जोर से वाई करता हूँ. लास्ट साधना ऑफ स्टेज 3. 4:30 के बाद जब मैं बिल्कुल जागृत हूं, I do my प्राण शरीर. Immediately after that, I perform the Manomay Kosh. Together, I aim to dedicate around 1.5 hours to these practices. उसके बाद मैं नहाता हूं और श्री विद्या करता हूं अनुष्ठान से पहले. लगभग शाम के 3 बजे मैं फिर स्टेज 3 प्राण शरीर वायुवाई करता हूं और शाम को मैं इवनिंग साधना करता हूं वायुवाई की, और रात को मैं ऐप से कुछ भी उठाकर कर लेता हूं स्वादानुसार. ये सारी मेरी फिक्स साधनाएं हैं. बाकी के समय पे whenever I get free moments from work, I use them for my spiritual practices as well.
क्योंकि मैं घर से काम करता हूं, आपकी कृपा से मेरी एफिशिएंसी कोडिंग में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल मैं पहले से कई गुना तेज अपने काम को खत्म कर पा रहा हूं। और जब कभी भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, मैं शिव योग की ऐप को खोलता हूं, कोई एक साधना उठाता हूं और फिर शिव की मौज में लीन हो जाता हूं। Here I am not focusing on my achievements related to wealth, health, or other worldly aspects, but by your grace, all those are already of the highest quality. My real achievement is how much I can work upon myself, how deeply I can go, how far I can progress. In truth, ये मेहनत मेरी अकेले की नहीं है। मेरी मेहनत से ज्यादा ये मेरे गुरु की मेहनत है। मेरे जीवन में जो कुछ भी मुझे इतनी आसानी से मिल गया, ये सब कुछ गुरु कृपा है। I deeply respect the effort my Guru gives because I know how hard he must have worked to reach this state today. He gives everything to us freely and effortlessly. Therefore, as a mark of respect for my Guru, I simply want to do my best. I do not know what else I can do. This is the only offering I have through my sadhana. I wish to honor your grace, your blessings, and this sacred path of Shiv Yoga. I know that one day you will be proud of me. I do not know what else to say or how to express myself. मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं और इससे ज्यादा मैं अब लिख नहीं पाऊंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने कुछ गलत कह दिया। मैं एक साधारण मनुष्य हूं जिसको कुछ ज्यादा पता नहीं है, पर एक चीज मैं बखूबी जानता हूं कि अगर आज मैं और मेरे परिवार जीवित हैं तो ये सब कुछ आपकी कृपा से। मैं बहुत खुश हूं कि आज के इस कलयुग में आप जैसे साधक हैं। आज के इस युग में आपकी सप्तऋषि के समान गहरी साधना है, आपकी मीरा के समान गहरी भक्ति है। आज के इस युग में शिव कृपा, शिवाग्नि आपके अनाहत में पूर्णता जागृत है। ये दर्शाता है कि शिव आपसे प्रेम करते हैं और चाहे दुनिया शिव को कितना भी अनदेखा कर ले, शिव जीवित है और शिव अनंत है और शिव की कृपा अनंत है। हमें कभी विद्युत का कोई आभास नहीं होता, और अगर हम विद्युत को जानना चाहते हैं तो हमें बिजली के बल्ब को देखना पड़ता है, और फिर विद्युत प्रकाश स्वरूप में बिजली के बल्ब से प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से शिव कृपा कभी दिखती नहीं, शिव कभी दिखते नहीं, लेकिन हमें शिव का एहसास होता है, शिव की अनुभूति होती है जब हम आप जैसे किसी साधक के जीवन को देखते हैं और आपके जीवन में इतने चमत्कार, इतनी खुशी, इतनी शांति, तो फिर आभास होता है कि शिव है। और आपकी साधना क्यों इतनी कीमती? क्योंकि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अंधकार में डूबे चले जा रहे हैं। ऐसे कई हैं जो इस जीवन के बाद शायद 84 लाख योनि के घड़े में गिर जाएंगे। जब ऐसे साधक आपको देखते हैं तो डूबते को जैसे रस्सी एक आखिरी सहारा है, वैसे आपसे मिलती प्रेरणा उन साधकों के लिए एक आखिरी सहारा है। शिव बहुत देर बाद कभी किसी साधक के जीवन में आता है, गुरु बहुत देर बाद किसी साधक के जीवन में आता है। सबसे पहले तो एक साधक ही एक साधक के जीवन में आता है मित्र बन के, और वो मित्र फिर एक ब्रिज बनता है गुरु तक, और गुरु ब्रिज बनता है शिव तक। इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले कहा संघम शरणम गच्छामि, क्योंकि बुद्ध भी जानते थे बुद्धम तो बाद में होगा, धम्मम तो बाद में होगा, सबसे पहले संघम शरणम गच्छामि। ये शिव की ही महिमा है कि आज हमारा इतना बड़ा संघ है, और हमारा संघ केवल आध्यात्मिक जीवन में तरक्की नहीं करना, हमारा संघ जिस भी चीज को स्पर्श करता है शिव कृपा से वो चीज सोना बन जाती। आने वाले समय में मुझे गर्व है, I have a lot of hope that sadhaks like you exist, for through you
the legacy of the Mahasiddha continues. और मैं प्रार्थना करता हूं जितनी सरल, कीमती और खूबसूरत इस साधक की अनुभूति है, ऐसी अनुभूति आप सबको हो। आप सब भी इतनी शांति महसूस करें, आप सब के भीतर भी इतना ही प्रेम प्रवाहित हो, आप सबके भीतर इतना भक्तिभाव जागृत हो, क्योंकि यही भक्ति तुम्हें शिव से जोड़ती है।